Warm greetings to the talented students, committed educators, respected principals, and all the individuals present here. I'm truly thrilled to stand before you today as we embark on a journey of inspiration and exploration. Welcome to this special seminar designed to ignite the flames of ambition and possibility in each and every one of you. It's a day filled with the promise of dreams and the potential for greatness. We are here to talk about a career path that is not only prestigious, but one that holds the power to transform our society for the better, a career in civil services. In the hours that follow, you will not only hear about the challenges they have faced, but also the immense satisfaction and sense of purpose that comes with making a difference in the world. You will discover that civil services is not just a job, it's a calling, a commitment to making our nation a better place for all. I encourage you to listen, ask questions, and engage with our speakers. They are here to guide you and to light the way for those who aspire to follow in their footsteps. I would like to express our heartfelt gratitude to Mr. Rohan Jilani, who is the chairman of Quintessence, for making this seminar possible. Their support is invaluable in bringing this inspiring opportunity to all of us. Thank you. So, without further ado, let's embark on this journey together, and may you find the inspiration you seek and the determination to pursue a career that can change the course of history. Thank you for being here today, and let's make the most of this remarkable opportunity. Before we dive into the enriching sessions ahead, allow me to introduce you to Quintessence. A beacon of guidance and success in the realm of civil services, it has served as a game changer in how we approach civil services, starting a new wave of representation in this vital field. With the recent JKAS 2022 results, Quintessence proudly presents an impressive 45 selections, an achievement that speaks volumes about the caliber of this coaching center. Established with the vision of nurturing future civil servants, Quintessence is committed to providing holistic guidance that goes beyond textbooks. Now, as we begin today's seminar, we have the privilege of learning not only from Quintessence, but also from two distinguished speakers who have walked the path of civil services. They are here to inspire and guide you on your journey. Our first speaker, M. Tehlil Shah, is no stranger to us. He is not just a teacher, he is a mentor who imparts not only the knowledge required to excel academically, but also the wisdom to understand what life truly means. With an unwavering commitment to serving others and a belief in pursuing civil services for the right reasons, his message resonates deeply with everyone who crosses his path. He has been a guiding light for many, instilling not just academic excellence, but also the values that are essential for a meaningful life. His journey in the world of civil services is a testament to the fact that true success is achieved not just by what one knows, but by how one uses that knowledge to make the world a better place. Today, we are honored to have M. Tehlil Shah with us. Please join me in extending a warm and enthusiastic welcome to M. Tehlil Shah as he takes the stage. अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है सबको अच्छे से? ठीक। I've been told कि यूजुअली आई टेक 3 hour सेशंस, 3 घंटा 3.5 घंटे का सेशन होता है, पर मुझे बताया गया है कि इन बच्चों को उतनी आदत नहीं है कि वो 3 घंटा स्टेज पे बैठ सके। तो मैं इस चीज़ का ख्याल रखूँगा कि हम बहुत ही ब्रीफ सेशन करें, लेकिन ऐसा सेशन हो कि आप यहाँ आए हैं, आपने 1-2 घंटा हमें देना है, उसमें हम कुछ सीख के जाएँ। और मैं आपको बताता हूँ, इस चीज़ की गारंटी देता हूँ मैं आपको कि जब आप यहाँ से निकलोगे 2 घंटे के बाद, आपको ज़िंदगी के बारे में, अपने करियर के बारे में और अपने एनवायरनमेंट के बारे में बहुत फ़ायदा मिलेगा और बहुत सीखने को मिलेगा। द फर्स्ट थिंग विल डू इज़ कि हमारा यहाँ अभी जुड़ने का मकसद क्या है, आप लोग यहाँ क्यों आए। कुछ लोगों के अंदर कुछ ख्वाब है कि वो किसी को IAS ऑफिसर को देखकर वो वैसा ही कुछ बनना चाहते हैं या वैसा ही कुछ करना चाहते हैं। कुछ लोग ज़बरदस्ती बैठे हैं, तो दिख भी रहा है मुझे कुछ, और कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके दोस्त आ गए तो उनके पीछे पीछे आ गए। अब जो भी है, हम अब हैं यहाँ पर अगले 1-2 घंटे के लिए, तो लेट्स गिव इट सम टाइम कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। 5 मिनट 10 मिनट थोड़ा अच्छे से सुनेंगे, ताकि हम समझ जाए कि अगर यहाँ पर कोई आया है किसी चीज़ पर बात करने के लिए तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अब मैं आपको इसका इम्पोर्टेंस बताता हूँ। इस वक्त कश्मीर में
लगभग ये इसी साल जुलाई 2023 का डेटा बता रहा हूं मैं आपको। इस वक्त जो अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी है कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, वो है लगभग 20%। 20% टू बी प्रिसाइज 18.3% है। तो अगर राउंड फिगर लिया जाए तो 20% के अराउंड वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट इन कश्मीर। इसका मतलब है हर पांचवा इंसान वो इंसान जो सुबह सवेरे स्कूल जाता था, जिसने 10th पास किया, जिसने 12th पास किया, जो ग्रेजुएशन में भी गया, तब भी वो बेरोजगार है। हर पांचवा इंसान कश्मीर में बेरोजगार है। तो हमारी एजुकेशन का आउटकम नहीं है उतना। आउटकम का मतलब हो गया कि मैं अगर एजुकेशन कर रहा हूं, मैं 10 साल 15 साल मेहनत करके स्कूल से निकलकर कॉलेज में टाइम देकर वहां से निकल भी गया मैं, उसके बावजूद मैं कहीं सेटल नहीं हो रहा। और ये क्वेश्चन आप सबको कंसर्न करना चाहिए। 15 साल एजुकेशन में देने के बाद भी शायद मार्केट को आपकी जरूरत नहीं है, इसीलिए वो आपको जॉब नहीं दे रहा। यह है हालत इस वक्त कश्मीर और बाकी स्टेट्स की। उसके बाद कश्मीर का एक और डेटा देता हूं मैं आपको। एक इंडेक्स होता है जो नीति आयोग लेकर आता है। नीति आयोग एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो लेकर आता है जिसको हम कहते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हो गया कि गुर्बत कितनी है, मोटा मोटा गुर्बत कितनी है। तो उन्होंने डेटा दिया है कि यहां पर लगभग हमारे पास 12.5% लोग कश्मीर के मल्टी डायमेंशनली पुअर है। मल्टी डायमेंशनली पुअर का मतलब हो गया उनके पास अच्छा खाना नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं है, अच्छा घर नहीं है, अच्छा उनके पास कुकिंग फ्यूल नहीं है, यानी खाना पकाने के लिए फ्यूल भी अच्छा नहीं है, उनके पास हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, उनके पास एजुकेशन नहीं है। 47% यानी आधी पॉपुलेशन ऐसी है जिनके पास न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी नहीं है। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी हो गया, फॉर एग्जाम्पल हम सब यहां खाना खाते हैं राइस, व्हाइट राइस, इसको हम शॉर्ट में बत कहते हैं। तो बत जिन जैसे हम सब हैं यहां, तो हम जो खाना खाते हैं, ऐसा अभी एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसको हम हिडन हंगर कहते हैं कि खाना खाने के बावजूद मेरी भूख नहीं मिट रही। क्यों? क्योंकि जो मैं खाना खा रहा हूं उसमें रेलेवेंट जो मेरी बॉडी को रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन है वो मिल नहीं रहा, मुझे खाने में है ही नहीं। इसीलिए आज कॉन्सेप्ट है फूड फोर्टिफिकेशन का कि खाने को ऐसा फोर्टिफाई किया जाए कि हमें एक ऐसा खाना दिया जाए जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स। खाना खाने के बाद भी हंगर होता है, उसको हम हिडन हंगर कहते हैं। ऐसे लोग 12.5%। और हमारे ट्रेडिशन और हमारे एथिक्स में यह है कि एक भी इंसान भूखा नहीं सोना चाहिए, एक भी इंसान मरना नहीं चाहिए। लगभग पॉपुलेशन कश्मीर की हर साल सुसाइड करती है, यह डेटा है। हालांकि इतनी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद ये बहुत कम सुसाइड रेट है। सबसे कम है यूटीज में, यानी जितनी भी यूनियन टेरिटरी है उसमें सबसे कम सुसाइड रेट फिर भी कश्मीर में ही है, इतनी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद। अब इंसानों में यहां पर ऐसा क्या है कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद यहां पर सुसाइड रेट उतना नहीं है? बिकॉज यहां के लोगों में रेजिलियंस है, एक जज्बा है फाइट करने का। और वो रेजिलियंस आप सब ने इनहेरिट किया है आप जब कश्मीर में पैदा हुए। तो यू ऑल आर रेजिलियंट पीपल, यू नो हाउ टू फाइट। आप कैसे भी, एजुकेशन अपॉर्चुनिटी उतनी नहीं है, एजुकेशन के बाद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, तब भी कोई रास्ता निकाल देता है कश्मीर का लड़का, कश्मीर की लड़की। हमने ये देखा कि पिछले काफ़ी सालों से आप 9th 10th 11th 12th में साइंस में जा रहे हैं, कॉमर्स में जा रहे हैं, नॉन मेड में जा रहे हैं, या फिर आपका आर्ट्स में जा रहे हैं। लेकिन आप कहीं भी जाए, आपको नीट के लिए जाना है, फिर जेई देना है, फिर चाहे आप अपनी ग्रेजुएशन में आगे जाए, आपका बहुत कम हो गया है। टेक एग्जाम्पल ऑफ NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो आपके नज़दीक ही है। वहाँ पर हर साल लगभग जितना भी बैच बनता है 350 बच्चे, उसमें यहाँ के भी काफ़ी होते हैं, कश्मीर के होते हैं, कुछ जम्मू के होते हैं, कुछ बाहर के भी होते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट है वो। वहाँ पर जाने के लिए कश्मीर का लड़का बड़ी मेहनत करता है। 9th में गया, 10th में गया, उसके बाद पढ़ा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ रहा अच्छे से। उसके बाद कोचिंग तो अब ज़रूरी करना है। स्कूल में सारा पढ़ाने के बावजूद भी कोचिंग करना पड़ेगा आपको। अब कोचिंग जा रहे हैं, कंपटीशन का लेवल तूफान है। उसके बाद आप गए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बड़े खुश हैं आपकी मुझे सीट निकल गई। वहाँ पर 8 सेमेस्टर देने के बाद भी आपके हाथ, बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जिनके हाथ में जॉब होता है। नेशनल इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ मैं, इट इज़ नॉट सम लाइक जो आपके यहाँ पर छोटे छोटे कॉलेजेस है उसकी बात नहीं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उतनी नहीं। हमारे खुद के काफ़ी सारे स्टूडेंट NIT से पढ़कर
आज सिविल सर्विसेज के लिए कोचिंग कर रहे हैं बिकॉज कोई मार्केट ही नहीं है कश्मीर में उनके लिए, या तो फिर बाहर जाना है, या तो आपको माँ बाप को छोड़कर, अपनी फैमिली को छोड़कर, अपने इलाके को छोड़कर बाहर जाना है। इधर पे उतना आपको जज्ब करने का सिस्टम नहीं है कि आप निकलो हम आपको पकड़ेंगे, ऐसा कोई सिस्टम नहीं। आपको चाहिए, मार्केट को चाहिए नहीं, तो इसीलिए यहां के लोग फिर बाहर चले जाते हैं अपने माँ बाप को छोड़कर। दैट इज अ सिनेरियो जो हम सबको सोचना है। उसी में आपको एग्जाम्पल देता हूं। अब इस प्रॉब्लम का जो मैंने आपके सामने रखी इस 5 मिनट में, इसका सोल्यूशन क्या है, क्या करना चाहिए? अगर ऐसा है कि एजुकेशन का उतना आउटकम नहीं है तो फिर क्या करना चाहिए? मैं आपको एक तरीका बताता हूं। आमतौर पर हम कहते हैं कि वो इंसान जो अल्लाह की दी हुई नेमत का सही इस्तेमाल नहीं करता, वो नाशुक्र इंसान होता है। उसको इस चीज़ का जवाब देना पड़ेगा कि मैंने तुम्हें ये सलाहियत दी थी मगर तुमने इसका सही इस्तेमाल नहीं किया। तो आप में से यहाँ पर जितने भी आज बच्चे हैं जिनमें ये सलाहियत है कि वो पढ़ना चाहते हैं, उनको उस सलाहियत का अटमोस्ट तरीके से बेहतरीन इस्तेमाल करना चाहिए, वरना वो नाशुक्र कैटेगरी में आ जाएगा। अब बेहतरीन इस्तेमाल अपनी सलाहियत का आप कैसे करेंगे? आप वो रास्ता इख्तियार करेंगे जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले, आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले, आपकी फैमिली को, आप जहां से है उस इलाके को, आपके इस पूरे रीजन को, इस खित्ते को। यह होना चाहिए आपका मकसद कि मैं अपने लिए काम करूंगा, अपने माँ बाप के लिए काम करूंगा, अपने इलाके के लिए काम करूंगा और अपने इस पूरे कश्मीर के लिए काम करूंगा। दैट हैज टू बी, वही है रास्ता जो इस मसले को हल कर सकता है। अब वो रास्ता कहाँ है, वो कैसे आपको मिलेगा, उसकी शक्ल क्या है, कि कैसे मैं वो रास्ता अपनाऊं जिसमें मेरा फायदा, मेरे घर वालों का फायदा, मेरे इलाके का फायदा और मेरे कश्मीर का फायदा हो। वो रास्ता है एक जो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा। अंसार शेख एक लड़का है, इंडिया के किसी इलाके से आया, एक देहात से आया, अंसार शेख। गूगल पे जाना, उसके बारे में थोड़ा सर्च करना। अंसार शेख आप ही के जितना था जब उसके माँ बाप उनके पास उतना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं था, उनके पास पैसा ज़्यादा नहीं था, पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं थे, लेकिन उसमें एक ख्वाब था कि मैं अपने माँ बाप को वो ज़िंदगी देना चाहता हूँ जो आज तक उनको हासिल नहीं हुई, जितना वो डिजर्व करते थे। तो उसने मेहनत किया। 21 साल का था, 16 साल की उम्र में शुरू किया उसने, 16 ईयर्स का था जब शुरू किया उसने। उसको 4-5 साल लगे और 21 साल की उम्र में उसने IAS का एग्जाम क्वालिफाई किया। और आपने ये भी देखा कि अंसार शेख इंडिया का 2016 बैच का सबसे यंगेस्ट IAS ऑफिसर बना 21 साल की उम्र में। अब इमेजिन करो, 21 साल का लड़का जो अपना घर नहीं, अपना आप नहीं, पूरा डिस्ट्रिक्ट चलाता है, पूरा डिस्ट्रिक्ट जिसमें सब कुछ आता है, जिसमें आपका हेल्थ, एजुकेशन, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ आता है। 21 साल का लड़का जो ये सब चला रहा है। हम अपने आप को वो छोटा समझते हैं, अभी तो बड़ी जिंदगी पड़ी है, अभी 20s में मैं आ गया हूं, अभी नया नया। 21 साल की, 22 साल का था जब अलेक्जेंडर ने शुरू किया था अपना, जब उसको गद्दी मिली थी, उसने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया सिर्फ 10 साल में, 30s में, और उसकी मौत हो गई फिर 30s में। इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया था। हमारे पास एक और एग्जाम्पल है सलाहुद्दीन अयूबी। अभी गाजा फलस्तीन का बड़ा इशू चल रहा है ना, सो इट वाज सलाहुद्दीन अयूबी जिसने जेरूसलम को फतह किया था, बैतुल मक़दिस को फतह किया था। कहा जाता है वो 6 साल का था जब उसकी माँ ने उसको ट्रेनिंग कैंप में छोड़ा था कि उसको सिखाओ। वो 6 साल का था तब जाके वो सलाहुद्दीन बना। वो आप मतलब हम जैसे 16, 18, 20 साल के भी होते हैं, हमें भी लगता है हम बच्चे ही हैं अभी। सो इट इज़ हाई टाइम कि आप ये चीज़ सीखें और समझें कि हम उतने छोटे नहीं हैं, हमें थोड़ा संजीदापन लाना चाहिए ज़िंदगी में। हमें ये चीज़ अपने हाथ में लेनी चाहिए कि वी ऑल्सो शुड डू समथिंग जिससे हम अपनी ज़िंदगी, अपने माँ बाप की ज़िंदगी ठीक कर सके। कम से कम अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है, फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे का माँ बाप के बीच में अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, और ये सिर्फ उसका प्रॉब्लम नहीं है, ये कश्मीर में डिवोर्स रेट बहुत अलार्मिंग सिचुएशन पे बढ़ रहा है। आप क्या कर सकते हैं? एक बच्चा जिसके माँ बाप की अच्छी रिलेशनशिप नहीं है, डिवोर्स रेट काफ़ी बढ़ रहा है, वो चाहता है भाई कोई ऐसा तरीका निकाला जाए कि जिससे मामला हल किया जाए। अब आप कितना भी अपने आप को ग्रिल करेंगे इंजीनियरिंग में, आप कुछ नहीं कर पाओगे इस मसले को हल करने के लिए। आप अपना भी कितना भी ग्रिल करेंगे अपने आप को मेडिसिन में, आप पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं कर सकते कि देश को चलाना कैसे है, कश्मीर को चलाना कैसे है। हमें सिर्फ क्रिटिसाइज करना आता है कि हम सड़क पे चले, भाई सड़क काफ़ी तंग होगी, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, अब हम इस पे बातें करना शुरू करेंगे, मगर हमारे पास सोल्यूशन नहीं है इसका।
आप नीट क्वालिफाई करके MBBS तो कर लोगे, मगर आपके पास पॉलिसी फ्रेमवर्क का ताकत नहीं होगा कि मैं एक ऐसा पॉलिसी बनाऊं, एक ऐसा सोल्यूशन बनाऊं, मामला हल करके दे दूं मैं। ये आप अपने आम ग्रेजुएशन वाले उस तरीके से हल नहीं कर सकते। इसके लिए अलग तरीका होता है जिसको हम कहते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। सिविल सर्वेंट्स कौन होते हैं? सिविल सर्वेंट्स वो लोग हैं जो आपका ये मशीनरी पूरा चलाते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि सिविल सर्वेंट्स कौन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह उठे, सुबह उठकर ही आपका पहला हाथ जिनके पास फ़ोन है वो किस पे जाता है? फ़ोन पे। एक आम इंसान अपना फ़ोन दिन में 200 बार चेक करता है, इतना एडिक्टिव है ये। अब आपने जैसे ही फ़ोन उठाया, अब फ़ोन आपको पता है बिना इंटरनेट के ऐसा हो जाता है जैसे इंसान है बिना रूह के पूरी लाश है। तो हमें इंटरनेट फैसिलिटी चाहिए, तभी मज़ा आता है उसको चलाने में। अब इंटरनेट में आज हम क्या चला रहे हैं? अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है? 4G 5G, हाँ 5G है ना। अभी 6G आएगा कुछ सालों में, 6-8 साल लगेंगे उसको, पर 5G चल रहा है अभी। अब 5G आपके फ़ोन में जो चल रहा है ये कैसे चल रहा है? कोई तो इसकी सर्विस दे रहा है ना। इसको हम कहते हैं 5G स्पेक्ट्रम। ये कंपनीज को बेचा जाता है स्पेक्ट्रम, कि आपको एलोकेट होगा ये स्पेक्ट्रम, तभी जाके आप 5G सर्विसेज लोगों को दे सकते हैं। और स्पेक्ट्रम एलोकेशन कैसे करना है ये हमारे पॉलिटिशियंस नहीं, ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं, जिनको हम कहते हैं IAS ऑफिसर्स, बड़े बड़े ऑफिसर्स। तो आपका फ़ोन भी नहीं चलेगा जब तक आपका सिविल सर्वेंट नहीं होगा कोई। आप घर से निकले, चलो आप नहा वहा कर निकल गए, अब आप गाड़ी में चढ़े, गाड़ी में रास्ता है आपका, रोड चलता है, वो रोड आपका नहीं बनेगा जब तक एक सिविल सर्वेंट ऊपर नहीं बैठा होगा। वो भी उसी का काम है। अब रोड को बड़ा करना है, रोड को छोटा करना है, वो सब उसी का काम है। बहुत सारे लोग अभी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को क्रिटिसाइज करते हैं कि हम तो चाहते हैं कि सड़कें बड़ी हो, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया? सड़कें छोटी कर दी, साइड पे फुटपाथ बनाया। लेकिन आपको पता नहीं, ये जो मॉडल उन्होंने एक्वायर किया है सड़कें छोटी करने का, अगर आपके पास ये दिमाग है तो आपको नहीं लगता कि जो लोग गवर्नमेंट चला रहे हैं उनके पास ये दिमाग नहीं होगा? क्या उनको नहीं पता होगा कि सड़कें छोटे करने से ट्रैफिक जैम होगा? उनको बिल्कुल पता है कि इससे क्या होगा। जहां पर रोड वाइडनिंग एक हद तक ही किया जा सकता है, उसके बाद नहीं हो सकता रोड वाइडनिंग। इस वक्त आप रोड वाइड कर लोगे, 5 साल के बाद और करना पड़ेगा, 10 साल के बाद और करना पड़ेगा, कितना वाइड कर लेंगे आप उसको? तो एक टाइम है ऐसा कि हमें ट्रांजिशन करना पड़ेगा, हमें अपने प्राइवेट व्हीकल्स छोड़ने पड़ेंगे, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना पड़ेगा। यही है इसका सोल्यूशन, और ये भी एक IAS ऑफिसर का ही सोल्यूशन है। तो ये है वो मशीनरी जो पूरा यहां पर कश्मीर चलाता है, चाहे इंडस्ट्रीज हो, चाहे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड हो, एजुकेशन हो, सबकी पॉलिसी फ्रेमवर्क ऐसे ही बनाई जाती है। अब आपको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा काम है करने का, जिसमें अगर हम अपनी सलाहियत डाल दें, जिसमें अगर हम अपनी मेहनत कर ले, तो हम भी उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं कि हम पॉलिसी फ्रेमवर्क कर ले अपने इस कश्मीर के लिए, और ऐसी पॉलिसीज बनाए जो हमारे लिए ही बेहतर है। ऐसी शायद आपको ये चीज उतना अट्रैक्टिव ना लगे कि मैं पॉलिसी फ्रेमवर्क करके लोगों को फायदा पहुंचाऊंगा, शायद ये अट्रैक्टिव ना लगे आपको। लेकिन जैसे जैसे उम्र होगी वैसे वैसे लगता है कि नहीं, बिफोर आई डाई एटलीस्ट ऐसा कोई काम हो कि जिसको मैं डेथ बेड पर याद करके सोचूं कि नहीं कुछ करके जा रहा हूं मैं। लेकिन शायद आपको इस वक्त वो अट्रैक्टिव ना लगे। आपको इस वक्त अट्रैक्टिव क्या लगेगा? पैसा, कि मुझे वो काम चाहिए जिसमें पैसा हो, जिसमें आराम हो, बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो। मैं आपको बता रहा हूं, एक IAS ऑफिसर जब IAS बनता है उसको लगभग तनख्वाह तो कम ही मिलता है, 1-1.5 लाख रुपए का अच्छा खासा, अगर सीनियर IAS ऑफिसर है तनख्वाह मिल जाएगा, मगर उसको जो घर मिलेगा साथ में, वो घर इतना बड़ा घर होता है कि जिसका अगर मंथली रेंट लिया जाए वो लगभग 15 से 20 लाख रुपए का रेंट होता है उसका। उसको एक गाड़ी मिलती है, उसको एक स्टाफ मिलता है, वो स्टाफ उसका हर काम करेगा, उसको एक मोबाइल फ़ोन मिलेगा, उसकी सारी कॉलिंग फ्री होगी, वो अब्रॉड जा सकता है, अमेरिका, वो अब्रॉड जा सकता है, स्टडी प्लान होगा उसका अब्रॉड में। आपको पता है हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना बहुत महंगा होता है, करोड़ों का फीस होता है। वहाँ पर वो सारा करोड़ों का फीस गवर्नमेंट आपको देगी, आप बाहर जाकर पढ़ सकते हैं, वापस आ सकते हैं। ये सारा है पैसे का, इसमें जो अपॉर्चुनिटी है, मनी। उसके अलावा किसी इंसान को पैसे से अट्रैक्शन नहीं मिलती, किसी इंसान को पावर से अट्रैक्शन मिलती है। वो पुलिस वाला SP, एक DC चल रहा है, पीछे 4 गाड़ियां चल रही है,
ठीक है, ये उसको पावर से अट्रैक्शन मिलती है। ऐसा इंसान जो जब आएगा तो सब खड़े हो जाए, ऐसा इंसान जो अगर कोई डिसीजन लेगा तो मेरी ज़िंदगी का आगे का फ्यूचर कोर्स बदल जाए। तो ये है पावर, ये आपको पावर भी देता है, अथॉरिटी भी देता है। इसके अलावा ये तो छोटी बातें होगी। जो छोटा इंसान होता है, जिसकी छोटी नज़र होती है, वो पैसे और पावर से अट्रैक्ट होता है। लेकिन एक बड़ा इंसान कैसे बनता है? एक बड़ा इंसान एक बड़े विजन से बनता है कि उसका विजन नहीं है महदूद कि मुझे पैसा चाहिए, उसका विजन नहीं है महदूद कि मुझे पावर चाहिए, उसका बड़ा विजन है, वो बड़ा ख्वाब देखता है। और विजन उसका ये है कि मैं अपनी फैमिली की, अपने इलाके की, अपने कश्मीर की हालत बदल दूं। और ये हालत सिर्फ एज ऑफ येट सिविल सर्विसेज आपको वो रास्ता देगा जिसमें आप अपने लोगों के लिए सहूलियत पैदा कर सकते हो। ये था थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन सिविल सर्विसेज का। नाउ सी, आपने ये 10 मिनट मेरी बात सुनी, लेकिन हमें ये भी पता है कौन सीखता है सिर्फ बातों से। हर एक को एक हादसा ज़रूरी है। ऐसा कहा जाता है कि बातों अब तो मैं चला जाऊंगा अभी, 2 घंटे में आपको मेरी सारी बातें भूल जाएंगी, आपको कुछ याद नहीं रहेगा। कल से वही ज़िंदगी और वही लाइफस्टाइल है। अगर एक बच्चा भी ये विजन ले ले जो मैं बता रहा हूँ, वो आप सब पर भारी हो जाएगा। अगर एक बच्चा ले ले, अगर एक ने भी वो दिमाग में डाल दिया और ठान लिया कि मैं करूँगा अंसार शेख की तरह, वो आप सब पर भारी पड़ेगा। जो साइंस स्टूडेंट है, जो कॉमर्स स्टूडेंट है, जो भी है, सब पर भारी पड़ेगा वो। और वो आप सबकी पॉलिसी बनाएगा, आप सबकी जिंदगी बदल देगा वो है अगर एक भी बच्चा मिल गया मुझे इस क्लास में। आपको पता नहीं कि ये कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि आप ये एक बार ये विजन दिमाग में डाल दो कि जो आमतौर पर चीज़ें जो हर्ड मेंटालिटी में सब एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। अभी यहाँ पर एक लड़कियों का ग्रुप है, ये 5 लड़कियों के, इसमें से एक का फादर उनको बोलेगा नहीं तुम्हें मेडिकल करना है, तो दूसरा बोलेगी उसका फादर ये बोल रहा है तो मुझे भी मेडिकल करना है, तो तीसरा भी इसी के पीछे भागेगा, चौथा भी वैसे ही, पांचवा भी वैसे। इसको हम हर्ड मेंटालिटी बोलते हैं। जैसे कट होता है ना, कट एक चल रहा है, उसके पीछे सब भागेंगे। उसको पता नहीं मुझे कहां जाना है, मगर सब भाग रहे हैं। उसको ये पता कब चलता है? जब वो 4 साल 5 साल देता है और जबरदस्त पैसा खर्च करता है, फिर बोलता है कि ये क्या हो गया, मार्केट को तो मेरी जरूरत ही नहीं है। इसीलिए दिस इज द टाइम जब इंडिया में आज ये नया रेवोल्यूशन फैल रहा है कि बच्चे स्कूल एज में ही सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। स्कूल एज में, जैसे स्कूल से ही आपको टीचर बताता है 9 से 10 से अच्छा पढ़ो, तब 11 12 अच्छा समझ आएगा, 11 12 अच्छा पढ़ो तब नीट अच्छा समझ आएगा, कोचिंग वाला वो एग्जामिनेशन जो एंट्रेंस होता है, तो एंट्रेंस अच्छा करो तब एमबीबीएस में अच्छा करोगे। ये सब जैसे बोला जाता है कि स्कूल से ही शुरू करना है। आईएएस या केएस का एग्जाम भी स्कूल से ही शुरू करना होता है। मैंने अपने क्लास में, मुझे याद है अपना स्कूल, हम जब अपने स्कूल में थे तो हमारे कुछ टीचर्स होते थे कि जो ज़बरदस्त जो पकाते थे। मैं भी वैसा ही एक पकाऊ टीचर हूँ, ठीक है, मैं भी पका रहा हूँ आपको, मगर आपको थोड़ा बहुत इस वर्ड पे थोड़ा संजीदगी से सोचना है कि आप नहीं चाहते आपकी ज़िंदगी, आपकी मेहनत की वजह से आपके माँ बाप की ज़िंदगी बेहतर हो जाए। आप नहीं चाहते अगर आप यहाँ पर बाहर रहते हैं तो आप कुछ ऐसा अचीव कर ले कि यहाँ इस इलाके को फ़ायदा मिल जाए, आपका भी नाम होगा, इस इलाके का भी नाम होगा। यू रिमेंबर किरण बेदी का नाम सुना आपने? किरण बेदी इज द फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर इन इंडिया। उसने भी आईएएस का एग्जाम दिया, उसको आईपीएस मिला, आईपीएस हो गया, वो पुलिस में चली गई। पुलिस में गवर्नमेंट ने उसको तिहाड़ में भेजा। तिहाड़ पता है? तिहाड़ जेल नाम सुना होगा आपने। तिहाड़ में जो उसने प्रिजन रिफॉर्म्स किए हैं वो आज तक एविडेंस है हमारे पास कि वैसे रिफॉर्म्स तिहाड़ में आज तक नहीं हुए जो किरण बेदी ने कराए थे। तो यहां से जो लोग बंद करके गवर्नमेंट ने उनको तिहाड़ जेल भेजा था, वो भी कहते हैं कि किरण बेदी के टाइम हमारे यहां पर सुविधाएं काफी ज्यादा थी। जो जेल में लोग थे, जो प्रिजन में थे, वो भी एक आईपीएस ऑफिसर थी। एक लड़की है, उनका क्या हुआ, शी वॉज एन एथलीट, एक एथलीट थी। उसका बहुत शौक था कि मुझे एथलेटिक्स में जाना है। एथलेटिक्स में कोई भी स्पोर्ट्स में, जैसे बास्केटबॉल है या स्विमिंग है, जो भी उनका चलता था। उसका क्या हुआ कि वो एथलेटिक्स में अच्छा कर रही थी और नेशनल खेल रही थी, और उसका जैसे ही उसका मैच हुआ, मैच से वो बाहर आई, उसका एक्सीडेंट हुआ, उसकी टांग टूट गई। यानी जो उसका एथलेटिक्स का ख्वाब था वो खत्म हो गया उसका।
देन शी स्टार्टेड वर्किंग ऑन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, और सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करके IAS ऑफिसर बनकर स्पोर्ट्स में उसने ऐसे रिफॉर्म्स कराए कि जिसमें बाकी एथलीट्स को फायदा हुआ। तो ये है लोग, आपको टिकना है इस पर। मैंने ये विजन ले लिया, मैंने ठान लिया कि मुझे कुछ करना है और मैं करूंगा ऐसा जो बड़ा हो। मैं मीडियोकर जिंदगी नहीं गुजारूंगा कि बस इतना ही छोटी नजर रखूंगा, बस 30-40 हज़ार का मेरे को तनख्वाह आना चाहिए, छोटी सी गाड़ी होनी चाहिए, ये मेरा विजन है और यही करते करते मैं मर जाऊंगा एक दिन। ये आपका विजन नहीं होना चाहिए। एक बड़ा ख्वाब, एक बड़ा आदमी तब बनता है जब उसके पास एक बड़ा ख्वाब हो। आपके पास जब ख्वाब ही नहीं है तो आप क्या अचीव करोगे? तो पहले आपको घबराना नहीं है। अगर आप आज अच्छा नहीं पढ़ रहे, आपको वही 70% 80% मार्क्स आ रहे हैं और शायद आपको टीचर बोल रहा है कि तुमसे कुछ नहीं होगा, आपको उसकी बात नहीं माननी है। आपसे कुछ भी हो सकता है, आप जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं। आपको अगर ख्वाब है, हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है अभी से। आपको बस आना है। आप में से सिर्फ 2 ही बच्चे अगर आ गए तो हमारा मकसद पूरा हो गया आज का। ये सर मुझे ख्वाब है, मुझे करना है, ये बताइए क्या करना है अभी। तो मैं आपको बताऊंगा अगले सारे 5 साल का आपका स्कीम क्या होगा। और 5 साल में आप देखेंगे वो बच्चा जो साइंस स्ट्रीम में मेडिकल जा रहा है, वो भी अच्छा है, वो भी हमारे लिए ज़रूरी है, मगर आप उसके ताज पर बैठोगे, उसके सर पर बैठोगे आप। ऐसा फील्ड है ये, बहुत बड़ा फील्ड है। ठीक है, ये तो हो गया दुनियाई एतबार से इसका क्या फ़ायदा है। कुछ लोगों की अब ओरिएंटेशन होती है थोड़ा दीनी टाइप की, उनको दीन का माहौल है घर पे और वो चाहते हैं कि मुझे तुम्हारी ज़िंदगी से, इस दुनिया से क्या सरोकार, मुझे तो अल्लाह राज़ी होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। उनके लिए भी मैं एक चीज़ बता दूं आपको। कुरान में एक आयत है जिसमें अल्लाह कहते हैं अफला ताक़िलून, क्या तुम सोचते नहीं हैं? क्या तुम नहीं सोच देख रहे कि यहाँ पर ये क्या है, ये मैंने क्या बनाया है? और अल्लाह कहते हैं कुरान में कि मैंने कोई भी चीज़ बिना मतलब की नहीं बनाई है। हर चीज़ का एक मतलब है, चाहे तुम्हें समझ आए नहीं समझ आए, मतलब है। और तुम पर यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम सोचो कि क्या मतलब है इसका। मुझे बनाया, जैसे रूमी कहते हैं कि इंसान के अंदर ही पूरी कायनात है, अगर वो सोचेगा तो। उसको देखना ही नहीं है बाहर सितारों की तरफ, वो अपने अंदर देखे, उसको अपने अंदर ही कायनात दिखेगी। तो ये था मोटा मोटा सिविल सर्विसेज, उसका दुनियाई एतबार और दीनी एतबार दोनों कवर कर लिया मैंने। ठीक है, यस प्लीज। जिसका जो भी क्वेश्चन है सोचकर आप सवाल पूछ सकते हैं। वालेकुम सलाम। आपने भी कहा कि 20% यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है जी। तो अगर हम देखा जाए कि जब भी हम 12th या 10th के बाद निकलते हैं स्कूल से तो बच्चे मैक्सिमम मेडिकल नॉन मेडिकल में होते हैं और जिसकी वजह से हर एक फील्ड में सैचुरेशन ज़्यादा हो गई है। हर एक चीज़ के लिए अपना अपना ये होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको 40% चाहिए किसी भी फील्ड में और आपको इंजीनियर्स 100 बन रहे हैं। अब जब सारे सिविल सर्विसेज में ही जाएंगे तो आपको सैचुरेशन हो जाएगी। देखिए, उसके लिए भी फिर अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, जैसे इंजीनियर्स की है। क्या नाम है आपका? तमन्ना। ठीक, मैं आपको एक डेटा देता हूँ, एक और डेटा। IAS का, सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हर साल 12 लाख लोग उसका फॉर्म भरते हैं। कितने? 12 लाख लोग उसका फॉर्म भरते हैं और सिलेक्ट पता है कितने होते हैं? 700। इसमें ये नहीं है अनएम्प्लॉयमेंट, इसमें मुझे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगा, नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने इस क्लास में लिया, मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा कि सिविल सर्विसेज सबकी बस की बात है। तो मुझे चाहिए ही नहीं आप सब लोग, आप सब में है ही नहीं वो। यहाँ पर सिर्फ 2 बच्चे मैं दिमाग में रख कर आया हूँ, सिर्फ 2 बच्चे इस पूरे क्लास में। मुझे पता है कि ये सब की बस की बात नहीं है। इसमें वो लोग जो अनइंटरेस्टेड होते हैं, जिनको शायद ये चीज़ समझ नहीं है कि ये क्या है, वो इसमें 1-2 साल प्रिपरेशन करके भूल जाते हैं कि उनको आता नहीं करना। लेकिन जो पहले से समझ गए कि ये करना कैसे है और गाइडेंस के अंदर रहे, उनको कोई नहीं रोक सकता सिलेक्ट होने में। तो ये एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का मसला नहीं है, ये मसला है आपने इसको समझा या नहीं। तो इस पूरे क्लास में अगर आप सब लोग भी आ गए, आपकी कोई गारंटी नहीं है आप सेटल हो जाओगे इसमें। लेकिन यहां सिर्फ 2 विजनरी बच्चे, एक लड़कियों में एक लड़कों में, एक विजनरी बच्चे जिनको बड़ा ख्वाब है, हम उनकी मदद करेंगे, उनको बताएंगे कैसे होगा ये।
तो इसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मत सोचो, इसमें आप देखो इट्स अ स्टेज, इफ यू हैव इट इन यू, यू विल डू इट, इफ यू डोंट हैव इट, यू कैन नॉट डू इट। ठीक है, इसमें इट्स नॉट जस्ट अ करियर अपॉर्चुनिटी, मैंने आपको बोला इसमें जॉब सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी सब कुछ है, मगर इसका ये छोटे लोगों का नज़रिया होता है कि मुझे जॉब चाहिए, ये छोटे लोगों का नज़रिया होता है। जिसने भी ज़िंदगी में कोई बड़ा काम किया है वो जॉब नहीं कर रहा था, वो नौकरी नहीं कर रहा था, उसका एक बड़ा विजन होता है, वो बदलाव लाता है, वो चेंज लाता है। तो ये बदलाव लाने का तरीका है। और किसी का कोई सवाल है? यस सर, जैसे कि आपने अभी कहा कि हम क्लास 9 से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं एप्लीकेशन के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली हमें वो गाइडेंस नहीं मिली कि हम 9 से स्टार्ट कर सकें। बट आफ्टर 12 जो ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे यूजुअली दे विल गो फॉर ग्रेजुएशन, हमें कोई नीट और कोई जेई नहीं लेना है। तो बेसिकली हमें थोड़ी गाइडेंस चाहिए कि हम कैसे प्रिपेयर करें, क्या सब्जेक्ट्स पढ़ें, और हमारा जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है वो हमें कैसे गाइड करेगा, और हम कौन सा सब्जेक्ट लें सो दैट वी कैन। आई बिलीव आपने थोड़ा बहुत रिसर्च किया है इस एग्ज़ाम के बारे में। आई कैन गो फॉर नेक्स्ट 3 hours just to talk about the exam, but I don't want to do that. ठीक है, we'll take your contact, हम क्लास के बाहर we'll have a one-on-one discussion कि how to do it. बट मैं इस क्लास को उस डिस्कशन में नहीं लेना चाहता, बिकॉज यहाँ मेजॉरिटी बच्चों को समझ नहीं आएगी कुछ। ठीक है, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी आफ्टर द सेशन इज ओवर। और कोई पूछो यार, हाँ प्लीज प्लीज, इसको कोई माइक दे दो। साइलेंस साइलेंस प्लीज। वालेकुम सलाम। सर, जैसा आपने अभी कहा कि सिविल सर्वेंट्स उससे फायदा मिलता है लोगों को, राइट? सो लाइक आपने बहुत फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी है इस जॉब में, ओके? सो पर्सन हु इज गोइंग टू बिजनेस, इसको बिजनेस करना है, हु इज बीइंग अ रिच लाइक मिलियनेयर, मल्टी मिलियनेयर, हु इज कंट्रोलिंग द पॉलिटिशियंस ऑफ कंट्री, लाइक दैट इंडिया इज द हिस्ट्री ऑफ दैट, politicians being controlled, who control civil servants. So Yes. how can civil servant guarantee to his own people? If he doesn't have a family. बैठिए ही इज एब्सोल्युटली राइट। दुनिया सिविल सर्वेंट्स नहीं चलाते, बैठिए आप, दुनिया सिविल सर्वेंट्स नहीं चलाते, दुनिया चलाते हैं कैपिटलिस्ट्स, पैसे वाले लोग। अभी जो हो रहा है दुनिया भर में वो सिर्फ एक पीछे कैपिटलिस्टिक एजेंडा होता है। यूनाइटेड स्टेट्स इकोनॉमी इज़ अ वॉर इकोनॉमी। दुनिया भर में जंगें होती है तो उनकी इकोनॉमी को फ़ायदा मिलता है। आई विल गिव यू वन एग्जांपल, जैसे रेथियॉन एक कंपनी है, इट्स अ वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो बंदूकें और वेपन्स बनाते हैं, और वो $multi-billion कंपनी है, $multi-billion कंपनी है। दुनिया भर में जब जंगें होंगी अमेरिका की इंडस्ट्री को बूस्ट मिलता है। तो ये कैपिटलिस्टिक एजेंडा तो है, मैं डिनाई नहीं कर रहा उसमें। दुनिया बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े कैपिटलिस्ट चलाते हैं, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट द आइडिया इज व्हाट डू यू वांट टू डू विद द लिमिटेड सेट ऑफ कैपेसिटी यू हैव। यू वांट टू बिकम अ मिलियनियर, आई एम देयर फॉर यू, गो फॉर इट। अगर आपका ये ख्वाब है कि मुझे कंट्रोल करना है सब कुछ, गो फॉर इट, नथिंग बेटर देन दैट। अगर आपका ख्वाब है कि मुझे पॉलिटिशियन बनना है, गो फॉर इट, नथिंग बेटर देन दैट। बट आई एम नॉट एन एक्सपर्ट कि पॉलिटिशियन कैसे बनना है, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट कि इलेक्शन कैसे लड़ना है, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट कि मैं आपको बोलूं कि बिजनेस कैसे करना है। बिजनेस सबसे टॉप पर, उसके सेकेंड रैंक पर आता है पॉलिटिशियन, थर्ड रैंक पर आता है सिविल सर्वेंट। मैं आपको सिविल सर्वेंट तक ले जा सकता हूँ, उसके बाद की जर्नी आपकी खुद की है। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जब सिविल सर्वेंट ऑफिसर था, ही वॉज एन IRS ऑफिसर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कमिश्नर, छोटी बात नहीं है। तो कमिश्नर होकर उसने कहा कि मुझे अब ग्रैंड लेवल पे बदलाव लाना है, एक डिस्ट्रिक्ट की लेवल पर नहीं, पूरी की पूरी दिल्ली में बदलाव लाना है। उसके लिए उसने फिर अपना वो IRS छोड़कर पॉलिटिशियन बन गया, आज चीफ मिनिस्टर है। ठीक है, तो इफ यू वांट टू डू दैट, गो फॉर इट, इट्स वेरी गुड। आपका ये कोई डिनाई नहीं करेगा कि दुनिया नहीं चला रहे, बिल्कुल चला रहे, सिविल सर्वेंट्स को भी चला रहे।
मगर मेरा काम है आपको सिविल सर्वेंट्स का बताना कि उसका पावर क्या है। वो एक आम इंसान को ऊपर उठा सकता है। लेकिन प्राइमरीली एक कंफ्यूजन मैं आपका दूर कर दूं, प्राइमरीली आपको जो लोग दिखते हैं पैसे वाले, जो जीरो से लेकर ऊपर तक उठे, आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ इलॉन मस्क, सुना है सबने, बिल गेट्स, ये स्टीव जॉब्स, सारे के सारे जीरो से लेकर ऊपर तक उठे। असल पैसा इनके पास नहीं है, ये दिमाग में डाल दो। असल पैसा, इलॉन मस्क इज नथिंग कंपेयर टू द ब्लैक रॉक। ब्लैक रॉक का नाम सुना आप? ब्लैक रॉक इज अ मल्टी ट्रिलियन डॉलर कंपनी जो दुनिया चला रही है। ब्लैक रॉक एक कंपनी है जिससे ज्यादा जीडीपी, यानी जिससे ज्यादा इनकम सिर्फ 2 कंट्रीज के पास है, एक अमेरिका, एक चाइना। तीसरे लेवल पर दुनिया में एक कंपनी आती है जिसके पास इतना पैसा है, जिसको हम ब्लैक रॉक कहते हैं, वैनगार्ड कहते हैं। ये 3-4 कंपनीज है जिनके पास $40 ट्रिलियन की एसेट वैल्यूएशन है। $40 ट्रिलियन। पूरे हिंदुस्तान के पास सिर्फ $600 बिलियन है, पूरे हिंदुस्तान के पास। उनके पास $40 ट्रिलियन की एसेट वैल्यूएशन है। तो ये है वो कंपनीज। इलॉन मस्क इज जस्ट अ फसाद, एक मिराज है जो आपको दिखाया जाता है। असल जो लोग पीछे बैठे हैं वो है जो वॉल स्ट्रीट को कंट्रोल करते हैं, और वो जेनरेशंस में पैसे वाले हैं। टेक एन एग्जांपल ऑफ गोल्डस्मिथ, रॉकफेलर्स, रॉथस्चाइल्ड फैमिली, उनको जेनरेशंस में पैसा है, और वो जीरो से ऊपर नहीं उठे। जीरो से जो ऊपर उठता है वो फसाद बनता है। असल पीछा है जो जेनरेशंस में पैसे। टेक एन एग्जांपल ऑफ रॉथस्चाइल्ड फैमिली। रॉथस्चाइल्ड फैमिली में इट्स अ जिविश फैमिली अलॉन्ग विद अदर्स। इन्होंने पहला बैंक वजूद में लाया, बैंक ऑफ इंग्लैंड, जिन्होंने सूद पे पैसा देना शुरू किया। एक यहूदियों का वो दिमाग का है, ब्रेन चाइल्ड है। फेडरल रिजर्व जो अमेरिका का सेंट्रल बैंक है, इट इज अगेन कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट एंटिटीज, वो भी प्राइवेट कंपनीज के पास है। फेडरल रिजर्व अमेरिका का सेंट्रल बैंक इज नॉट अ गवर्नमेंट्स बैंक, वो गवर्नमेंट का बैंक नहीं है। डॉलर जिसके हाथ में है वो गवर्नमेंट है ही नहीं। तो ये लोग चलाते हैं, पूरी दुनिया चलाते हैं, मगर ये जनरेशंस में। रॉथस्चाइल्ड का कहा जाता है, ये जो आज फलस्तीन और इजराइल के बीच में मामला चल रहा है, ये असल में लॉर्ड रॉथस्चाइल्ड ने लेटर लिखी थी क्वीन विक्टोरिया को कि यहूदियों को वहाँ जाने की इजाज़त दे दो आप। उसको बैलफोर डिक्लेरेशन कहते हैं, जो बाद में आई थी। तो ये है, उनके पास जनरेशंस में पैसा है। तो अगर आपके पास उतना पैसा है तो मैं भी आपको ज्वाइन कर लूँगा। चलिए, आई होप कि आपने मेरी 100 बातों में से अगर एक ही बात समझ ली, दैट इज़ इनफ फॉर मी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पेशेंट ऑडियंस। Thank you.